Hello everyone. I hope you all are doing well. Today, in the very first online lecture, we will discuss the section one of your course, emerging forms of literature. In the section one, we have the topics like literature, some ways of studying literature, literature and literary study, the nature of literature, the function of literature, etc. I will also share with you guys the files which directly deal with these topics. And I have chosen and selected and cut of those files from the recommended or from the recommended books which have been given in your scheme of studies. So you can also go through those files. You can also go through those books at length if you want to. But I have already clipped those files from the whole books for the section one. So today, in the very first topic, we will discuss some ways of studying literature. Here, we first of all will discuss what is literature, and then we will also go towards the kinds or the elements of literature, or the forms, or the ways to produce literature. So here in the very first line, however loosely implied, the word literature commonly carries with it uh, alike in the language of criticism and in that of everyday course, a clear suggestion of delimitation. यहाँ पे हमें राइटर बता रहा है कि लिटरेचर जब हम कहते हैं तो ये हमें सबसे पहले इट गिव्स अस अ क्लियर सजेशन ऑफ डिलिमिटेशन, हमें एक डिलिमिटेशन की एक सजेशन मिल रही होती है। कैसे, हम आगे देखते हैं। For example, in the one case as in the other, a distinction is implied between books which in the literary sense are books and those which in the same sense are not. यानी एक डिलिमिटेशन आपको पहले ये मिल रही होती है कि आप कुछ बुक्स को लिटरेरी सेंस में कहते हैं कि ये बुक्स हैं और कुछ को कहते हैं ये नहीं है। फिर देखें जी नेक्स्ट, बट एज वी अप्रोच द बॉर्डर कंट्री फ्रॉम आइदर साइड वी पास इनटू द रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। ज़ाहिर है हम फिर इस रेंज में जाएंगे, लिटरेचर क्या है, लिटरेरी बुक्स कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, तो फिर एक दिस इज अ काइंड ऑफ डायलेमा, दिस इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। And with this uncertainty, the controversy as to the exact definition of literature commences. यानी फिर इस कंट्रोवर्सी में आप जब जाएंगे तो फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिटरेचर की भी नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, फिर वो भी मसला होगा। फॉर एग्जांपल, हमें फिर conundrum में होंगे, we will be in conundrum or uncertainty, and or we will not be able to find out the exact definition of literature. For example, shall we follow Charles Lamb? यानी हम फिर will ask this question, we'll pose this question to ourselves that shall we follow Charles Lamb? Charles Lamb की definition of literature को हम follow करें जो कि क्या करता है कि he excluded the works of Hume, Gibbon, Flavius Josephus, etc. together with directories and almanacs. यानी वो इन चीज़ों को डॉट बोर्ड्स को, डायरेक्टरीज जो एल्मेनाक्स वगैरह को ये तो एक्सक्लूड कर देता है, वर्क्स ऑफ ह्यूम वगैरह को भी वो एक्सक्लूड करता है। या फिर हम शैल वी अडॉप्ट द व्यू ऑफ हेलम, या फिर हम हेलम के व्यू ऑफ लिटरेचर को फॉलो करें। वो क्या कहता है, हु अंडर द जनरल हेड ऑफ लिटरेचर कंप्राइज ज्यूरिस्प्रूडेंस, थियोलॉजी एंड मेडिसिन। यानी वो फिर इन चीज़ों को कंप्राइज करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को यानी लॉ वगैरह को, थियोलॉजी यानी रिलीजन को, और मेडिसिन एक्सेट्रा को। तो फिर हम इन दो एक्सट्रीम्स में फंस रहे हैं, एक तरफ लैम्स की एक्सट्रीम है और दूसरी तरफ हेलम की एक्सट्रीम है। तो फिर हम इस दो एक्सट्रीम में से एक मिडवे कहाँ से निकालें? वी शैल गेट व्हाट फॉर आवर पर्पसेस शुड बी एन आइडिया ऑफ लिटरेचर। और फिर हम हमारे आइडिया, हमारे पर्पस के लिए लिटरेचर के, हम फिर उसके एक मीडियम, एक मीन हम निकालेंगे दो एक्सट्रीम में से। Literature is composed of those books and of those books only which, in the first place, by reason of their subject matter and their mode of treating it, are of general human interest. यहाँ पे हमें फिर बताया जा रहा है कि लिटरेचर तो फिर वो चीज़ होगी, स्पेसिफिकली वो बुक्स होंगी जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट को डील कर रहा हो। A piece of literature differs from a specialized treatise on astronomy, political economy, philosophy or even history. यानी जो लिटरेचर है वो डिफर करेगा बाकी
डिफर करेगा ये एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिलॉसफी और इवन हिस्ट्री से भी ये डिफर करेगा। हम पीस ऑफ लिटरेचर उनको नहीं कहेंगे। फिर अगर ये चीज़ देखी जाए कि लिटरेचर सिर्फ ह्यूमन इंटरेस्ट को उसका सब्जेक्ट मैटर डील करता है, ऐसे केस में तो फिर हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमी एक्सेट्रा ये फिर इनसे डिफर करने लग जाएगा लिटरेचर। क्यों? 2 रीज़न्स हमें बताई जा रही है। इन पार्ट बिकॉज़ इट अपील्स नॉट टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ रीडर्स ओनली बट मेन एंड वुमेन एज़ मेन एंड वुमेन। क्योंकि लिटरेचर फिर एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता, रीडर्स के लिए, जबकि ये मेन एंड वुमेन इन जनरल को डील करता है। और एंड इन पार्ट बिकॉज़ व्हाइल द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर इज सिंपली टू इम्पोर्ट नॉलेज वन आइडियल। और दूसरी रीज़न ये है कि एक जो ट्रेटिस का ऑब्जेक्ट होता है वो तो सिंपली ऑब्जेक्ट उसका ये है कि टू इम्पोर्ट नॉलेज, यानी किसी भी फील्ड पे, किसी भी एक एरिया पे, एरेना पे कोई डिटेल नॉलेज आप इम्पोर्ट करते हैं और लिखते हैं जब। सो हम कहते हैं कि वेदर हम पे लिटरेचर को देखते हैं कि वेदर इट यील्ड एस्थेटिक सैटिस्फैक्शन बाय द मैनर इन व्हिच इट हैंडल्स इट्स थीम, यानी पे एस्थेटिक सैटिस्फैक्शन भी आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम चीज़ इसको भी देखते हैं लिटरेचर। The study of literature, as thus conceived, is as far as possible removed from both from the academic formalism and from the dilettante trifling. So यहाँ पे हमें लिटरेचर की फिर एक नई चीज पता चलती है कि लिटरेचर को कहा जाता है कि ये फिर एकेडमिक फॉर्मलिज्म और जो डिलेटांटी ट्राइफलिंग है, यानी डिलेटांटी डज मीन के एमेच्योर, जो एमेच्योर है कोई अपनी फील्ड में, एमेच्योर इन अ फील्ड आउट ऑफ जो एक अपनी फील्ड में एमेच्योर है बट ही डैबल्स इन अ फील्ड आउट ऑफ कैजुअल इंटरेस्ट रादर देन एज अ प्रोफेशन और सीरियस इंटरेस्ट। Yeah, you can say that a person with a general but superficial interest in any art or branch of knowledge. तो फिर लिटरेचर को कहा जाता है कि एकेडमिक फॉर्मलिज्म और ये डिलेटेंटी ट्राइफलिंग यानी ट्रिवियल किस्म की जो डिलेटेंटी की वो एक्ट्स हैं उनसे ये तो दूर है, इनसे तो एक हट करके एक चीज है। A great book grows directly out of life, यानी अब लिटरेचर या ग्रेट बुक जिसको आप कहते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। वो क्या है? कहता है कि लिटरेरी जो ग्रेट बुक होगी वो इट विल कम, इट विल ग्रो, इट विल स्प्रिंग डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो लाइफ से निकल करके आएगी सामने। जब आप इसे आप पढ़ेंगे तो फिर ये लाइफ से रिलेटेड होगी, फ्रेश रिलेशंस विद लाइफ के बारे में बताएगी। फिर कहा जाता है लिटरेचर इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट मैन हैव सीन इन लाइफ, what they have experienced of it, what they have thought। फिर लिटरेचर के बारे में बताया है कि मैन ने क्या एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उन्होंने देखा क्या है, उन्होंने सुना क्या है, फील क्या किया है। लिटरेचर तो उस चीज के बारे में हम बताता है। फिर नाउ वी हैव got a very beautiful definition of literature by the writer। हमें बहुत जबरदस्त डेफिनेशन मिलती है। Literature it is thus fundamentally an expression of life through the medium of language। लिटरेचर को एक्सप्लेन करता है कि अगर ये लाइफ की बातें हैं, ये लाइफ से ही ग्रो करती है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। फिर लिटरेचर की डेफिनेशन तो ये होनी चाहिए, इट इज दस फंडामेंटली एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी आप लाइफ एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। बट ये जो एक्सप्रेशन है, सच एक्सप्रेशन इज फैशन इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी आर्ट एंड दीज in themselves will in their proper place and time enlist the attention of the student। यानी proper place, proper time, proper form में होनी चाहिए जो ज़ाहिर जितने भी आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं लाइफ की। लिटरेचर लिव्स बाय वर्च्यू ऑफ द लाइफ व्हिच इट एम्बॉडीज। लिटरेचर के बारे में बताया जा रहा है कि लिटरेचर जब तक लाइफ है तो ये इसी की वजह से, इसी की बदौलत जिंदा है, क्योंकि लाइफ को ये एम्बॉडी करता है, लाइफ को इनकॉर्पोरेट करता है, बताता है। तो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ। By remembering this, we shall be saved from the besetting danger of confounding the study of literature with the study of philology, rhetoric, or even literary technique। कहता है कि फिर हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि लिटरेचर जो है इट इट लिव्स बाय वर्च्यू ऑफ लाइफ, तो इस चीज को अगर ध्यान में रखें कि लाइफ की बदौलत जिंदा है, तो फिर हम इस चीज को इस डायलेमा या कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि लिटरेचर इज द स्टडी ऑफ फिलॉलजी और rhetoric और इवन लिटरेरी टेक्निक। फिर हम लिटरेचर को इनकी स्टडीज तक सिर्फ लिमिट नहीं करेंगे। आई होप कि आपको इनकी मीनिंग पता है। अगर नहीं भी पता है तो यू कैन चेक आउट ऑन योर ओन। अगर फिलॉलजी बाय द वे इसको कहते हैं कि व्हेन यू it is the humanistic study of historical linguistics, or you can also say that love and study of learning and literature। Philology is love and study of learning and literature, all right। So
तो हम कहते हैं कि ये अगर बात पता हो कि लिटरेचर लाइफ की बदौलत जिंदा है, तो फिर हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि लिटरेचर स्टडी या फिलॉलजी या ओनली रेटिक है। To say that literature grows directly out of life is of course to say that it is in life itself. अब जब ये कहते हैं कि लिटरेचर इट ग्रोज आउट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये फिर कह सकते हैं कि लिटरेचर इज इन इटसेल्फ लाइफ। तो लाइफ है ये, फिर अगर लाइफ से ग्रो करता है तो तो फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरेचर की इम्पल्सेस क्या हैं, यानी इसकी स्टिमुलस क्या है, तो फिर जो लिटरेचर प्रोड्यूस होती हैं जिसके वजह द इम्पल्सेस व्हिच हैव गिवन बर्थ टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। ये हम अब देखने जा रहे हैं कि कौन सी इम्पल्सेस है जिसने लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है, जिसने लिटरेचर को बर्थ दी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेचर देयरफॉर इज नॉट कन्वेंशनल नॉर इट आर्बिट्रेरी, यानी आप इसकी क्लासिफिकेशन को ना कन्वेंशनल कहेंगे ना आर्बिट्रेरी कहेंगे, बल्कि एक प्रॉपर मेथड से होती है, इम्पल्सेस के थ्रू होती है। What we call the formal divisions of literature must be translated into terms of life if we would understand how they originated and what meaning they will have for us. The great impulses behind literature may. Now we have got the great impulses behind literature. The impulses which give birth to literature are the impulses which impel the artist to produce some masterpiece or literature. The impulses are. First of all, our desire for self expression, एक इम्पल्स तो ये होगी लिटरेचर प्रोड्यूस करने की, हमारी एक डिजायर होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। दूसरी चीज, आवर इंटरेस्ट इन पीपल एंड देयर डूइंग्स, और हमारा जो इंटरेस्ट होता है पीपल में और इनके कामों में, तो ये भी एक इम्पल्स है जो लिटरेचर प्रोड्यूस करती है। थर्ड वन इज आवर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी इन विच वी लिव एंड इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन विच वी कंज्यूर इनटू एग्जिस्टेंस, यानी फिर हमारा इंटरेस्ट जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है और फिर हम जो इमेजिनेशन से कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं उसमें इंटरेस्ट, ये भी एक इम्पल्स है। Fourth one is our love of form as form. We are strongly impelled to confine whether what we think and feel. Hence, the literature which directly expresses the thoughts and feelings of life. हमारा love of form as form. कैसे जी? क्योंकि हमें कोई बात अगर पता चलती है, तो फिर हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हम इम्पेल्ड होते हैं, अर्ज होते हैं कि दूसरों को भी बताया जाए, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम थिंक कर रहे हैं, ठीक है? तो तो फिर आप कह सकते हैं, hence the literature which directly expresses the thoughts and feelings of the writer. क्योंकि जब आप यू आर इम्पेल्ड टू फील, यू आर इम्पेल्ड टू कन्फाइड टू अदर्स व्हाट यू फील एंड थिंक, तो इन दिस वे यू विल टेल अदर पीपल व्हाट यू फील और व्हाट यू थिंक। तो सो फिर आप कह सकते हैं कि राइटर या लिटरेचर इज ही एक्सप्रेसेस और शी एक्सप्रेसेस थॉट्स और फीलिंग्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर। नेक्स्ट इज literature which deals with the great drama of human life and action. ज़ाहिर लिटरेचर ऐसा भी है कि जिसमें वी आर ये ऐसा ही लिटरेचर है जैसे आप दूसरे में फिर अपनी जब फीलिंग और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर इंटेंसली इंटरेस्टेड इन मैन एंड वुमेन, देयर लाइव्स, देयर मोटिव्स, देयर पैशंस, देयर रिलेशनशिप्स। तो फिर ये भी कह सकते हैं लिटरेचर विच डील्स विद द ग्रेट ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शन। तो फिर ये लिटरेचर ओवरऑल ये डील करता है ह्यूमन लाइफ और एक्शन से। तो जब आप कहते हैं कि जब आप वी आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग अदर्स अबाउट द थिंग्स वी हैव सीन और इमेजिन, जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को बताने में हम बड़ा शौक रखते हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कहेंगे हेंस द लिटरेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज नोन एज द लिटरेचर ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप डिस्क्राइब करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू हैव इमेजिन, ठीक है? And where the aesthetic impulse is present at all, we take a special satisfaction in the mere shaping of expression in forms, hence the very existence of literature as art. तो जहाँ पे aesthetic impulse present होती है, ऊपर जहाँ पे आप फॉन्ट एक तो एक में आप बहुत शौक रखते हैं दूसरों को बताने की अपनी चीज़ों में, और एक ये है कि aesthetic impulse is involved there. Aesthetic impulse जब इन्वॉल्व होती है या स्पेशल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ काम करते हैं, तो उसको आप बोलेंगे लिटरेचर एज आर्ट, यानी आप जब एस्थेटिक आ जाएगी या एस्थेटिक स्पेशल सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, आप एक्सप्रेशन की फॉर्म्स में या ब्यूटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर दिस इज नोन एज लिटरेचर एज आर्ट। नेक्स्ट इज जी मैन एज वी आर ऑफन रिमाइंडेड इन इज अ सोशल। अब मैन के बारे में बात होती है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जब सोशल एनिमल होता है तो फिर वो अपने आइडियाज, अपने इमोशंस, फैंसीज अपने वगैरह वो अपने तक नहीं रखता,
अपने अपने एक्सपीरियंसेस अपने तक नहीं रख सकता, फिर वो अपनी उसकी एक डिज़ायर होती है कि दूसरों को बताए। तो फिर अब जब वो ये काम करता है तो आप कह सकते हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आर टू बी रिगार्डेड एज़ ओनली so many channels which is he has opened up for himself for the discharge of his sociality। फिर ऐसे लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है तो फिर बहुत सारी उसकी एक्सप्रेशन होती है डिस्चार्ज ऑफ हिज सोशलिटी, अपनी सोशलिटी को बरकरार रखने के लिए फिर बहुत सारे ऐसे काम करता है। तो हमारे पास वो भी इन अ वे एक लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है। Moreover, these impulses behind literature explain not only the evolution of the various forms of literature but also our interest। फिर कहता है कि ये जो impulses हैं लिटरेचर के पीछे यानी जिसकी वजह से लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, they explain not only the evolution of the various forms of literature but also our interest। ये सिर्फ लिटरेचर की एवोल्यूशन की कोई बहुत सारी फॉर्म्स को सिर्फ एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि हमारे इंटरेस्ट को भी एक्सप्रेस करता है। हमारा इंटरेस्ट किस में जी? इन सच फॉर्म जो भी ये फॉर्म्स हैं इसमें लिटरेचर की फॉर्म्स है इसमें हमारा इंटरेस्ट भी प्रोड्यूस कर शो करता है। फिर हमें बताया जाता है इफ वी आर कंस्ट्रेंड टू make others the confidence of our thoughts and feelings, experiences, observations, imagining, we are glad to listen while others tell us theirs। अगर हम अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लें कि दूसरों को हम वो चीज़ें ना बताएं जो हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो जब दूसरे हमें कुछ बताते हैं तब तब वी फील ग्लैड, वी आर ग्लैड एंड टू लिसन व्हाट अदर्स टेल अस अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस और इमोशंस एक्सेट्रा। while उसके बाद while our own delight in artistic beauty will make us readily responsive to the beauty। जबकि अब हमें बताया जाता है कि हमें अपनी एक we too have delight in artistic beauty ना, तो everybody likes artistic beauty। तो फिर ये चीज हमें readily responsive कर देती है ब्यूटी से। जब भी कोई ब्यूटीफुल थिंग या आर्ट सामने आता है तो फिर we get responsive, हम सुनते हैं, हम we feel glad to listen, we feel glad to see। Then next is, as these impulses merge together in life, so they will merge together in literature, with the result that the different divisions of literature which spring from them will inevitably overlap। ये जो इन impulses के through literature की बहुत सारी form सामने आती हैं तो कहता है कि ये overlap भी करेंगे आपस में। For example, we simply distinguish them from one another, therefore the lyrical poem from the epic, the drama from the descriptive essay, and so on and so forth। यानी हम फिर उनको डिवीजन करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, लिरिकल फॉर्म में, एपिक में क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, फिर हम इनको डिफरेंट बेसिस उनको डिवाइड करते हैं। इट इज इन दिस वे दैट वी ऑब्टेन अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फिर हम इस बेस पे क्लासिफिकेशन की बेस ढूंढते हैं, बेस बनती है क्योंकि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को डिवाइड जब करते हैं। लेकिन फिर इट इज हाउएवर अ बेसिस ओनली, यानी सिर्फ ये बेस है। We must go farther and consider not only the impulses which produce literature, but also the subjects with which it deals। हमें सिर्फ impulses ही ढूंढना काफी नहीं है बल्कि जिन सब्जेक्ट से लिटरेचर डील करता है वो भी सामने लानी होगी। जाहिर है अगर अपने सर्वे को कंप्लीट करना है, सिर्फ ये बेसिस के क्लासिफाई कर लिया, इम्पल्सेस की बेस पे लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको क्लासिफिकेशन होगी डिफरेंट फॉर्म में, एपिक, ड्रामा, सब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, दिस इज नॉट इनफ, दिस इज ओनली अ बेसिस। फिर आगे जब आपने कंप्लीट अगर सर्वे करना है तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सर्वे, so you will have to go into the details that the literature you produce, so you will have to give the subjects of the literature you produce or the artist produce। We may perhaps venture to arrange them into 5 larger groups। जब आप फिर वो सब्जेक्ट को डील करते हैं उसके लिटरेचर के सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आपने इम्पल्सेस के थ्रू लिटरेचर प्रोड्यूस किया, आप उनके सब्जेक्ट्स क्या है, तो उनको लार्जर 5 लार्जर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज the personal experiences of the individual as individual। पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे हैं एज एन इंडिविजुअल, यानी हम एज इंडिविजुअल जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया लिटरेचर का। द थिंग्स व्हिच मेक अप द सम टोटल ऑफ हिज प्राइवेट लाइफ, आउटर एंड इनर, यानी आर्टिस्ट का एक प्राइवेट लाइफ है जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आउटर इनर जो भी हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकंड थिंग इज द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन एज मैन, यानी मैन की एक्सपीरियंसेस एज मैन जो हैं, those great common questions of life, death, sin and destiny, God, man's relation, ये second experiences में आ जाएंगे, यानी the experience of man as man में, relation with God, life and death, sin and destiny, etc।
Third one is the relation of the individual with his fellows, the relation of the individual with his fellows or the entire social world. तो आप कह सकते हैं जो आपके फेलो से आपके जो रिलेशन है वो, और या इंटायर सोशल वर्ल्ड से जो रिलेशन है वो एक सब्जेक्ट हो गया थर्ड। फोर्थ सब्जेक्ट इज द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड आवर रिलेशन विद दिस, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ नेचर और उससे रिलेशन हमारा जो है उससे हमारा है। मैंस फर्स्ट वन इज मैंस ओन एफर्ट्स टू क्रिएट एंड एक्सप्रेस अंडर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड ऑल। जो मैंस की अपनी एफर्ट है, इंटेलेक्ट है, इसको क्रिएट करने में, फिफ्थ वन वो है। Considering only the character of its subjects, we may thus distinguish five classes of protection. तो हम इन 5 classes of protection को distinguish भी कर सकते हैं। The first one is जो आपको हमने ऊपर subjects को discuss किया। The first one is the literature of purely personal experience. Of the second one is of the common life of man as man. Next is of the social world under all its different aspects. Fourth is the literature which treats of nature, and the fifth is the literature which treats of literature and art. Here next, we have first the literature of self-expression. We have already discussed here in the subjects. The first one is let's go into the details of, let's delve deep into the details of the literature of self-expression. What is this literature? It includes the different kinds of lyrical poetry. When we say, जब आप कहते हैं कि literature of self-expression, तो इसमें ये चीजें आ जाएंगी। self-expression में आप कौन सी literature produce करेंगे? Lyrical poetry, poetry of meditation, argument, and the elegy, the essay and treatise, where these are written from the personal experiences, personal point of view. यानी ये सारी चीजें self-expression, literature of self-expression में fall करेंगी। इसमें इवन के ट्रेटिस भी आ जाएंगे, ऐसे भी आ जाएंगे, लेकिन वो वाले ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। Secondly, the literature in which the writer, instead of going down into himself, goes out of himself in the world of external human life and activity. जब आप सेकंड पार्ट वो है, सेकंड सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर वो है, जिसमें राइटर अपने आप में सिर्फ देखने के बजाय अपने से बाहर देखता है, लाइफ ह्यूमन, एक्सटर्नल ह्यूमन लाइफ, एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह को देखता है। और इसमें किस तरह के लिटरेचर आते हैं? हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, द बैलेड एंड द एपिक, द रोमांस एंड वर्स, एक्सेट्रा। Thirdly, we have the literature of description. Literature of description हमारे पास थर्ड है। इसमें क्या है जी? Not in itself a large and important event, since description literature is ordinarily associated with, or for most part subordinated to the interest of self-expression of narrative, but comprising in the book of travel and यानी इसमें you are going to describe the things, जिसमें descriptive ऐसे आ जाते हैं, poem आ जाती है, etc. ये चीजें आ जाएंगी। In all these divisions, certain elements of composition are always present. ये जितने भी एलिमेंट है कि आपको certain element of composition मिलेगा। First of all क्या जी? The elements furnished, वो elements जो होंगे they are furnished by life itself. ठीक है? तो आपको एक composition का जो element है वो life itself उसको compose भी furnish भी करेगी। Then there are the elements contributed by the author, यानी फिर ऐसे भी elements है वो जो है जिसमें elements furnished by the life itself which constitute the raw material of any piece of literature, जैसे poem, essay, drama, etc. एक element वो हो गया। फिर element वो है जो writer हमें element जो हमें produce करेगा, contribute करेगा। वो जो भी raw material उसके पास है फिर उसको एक literary form, literary art की शक्ल जब देगा। These may be roughly tabulated under 4 heads. ये जो elements हैं इनको roughly आप 4 heads में वो कर सकते हैं, यानी वो कैसे compose होता है। ठीक है, सबसे पहले impulses आई, impulses के through literature produce हुआ, फिर उनका subject है, फिर subject के क्या-क्या चीजें हैं जो subject बनी, फिर उनको हमने further divide किया उनके different elements में subject को 3-4 element जो हमारे पास सामने आए, फिर जो subjects आए, फिर subject के बाद अब elements को देखते हैं कि क्या elements हैं जो फिर ये composition में help out करते हैं। First is there is the intellectual element, the thought which the writer brings to bear upon the subject and which expresses in the work. सबसे पहले तो एक राइटर की अपना इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है जिसकी वजह से वो थॉट आती है, फिर लिटरेचर प्रोड्यूस होता है। सेकेंडली देयर इज द इमोशनल एलिमेंट, फिर इमोशनल एलिमेंट आ जाता है, फिर जो इमोशन जो उसको राइटर को अराउज करती है, अर्ज करती है टू प्रोड्यूस समथिंग। थर्डली देयर इज द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन, फिर एक इमेजिनेशन का एलिमेंट है जिसको राइटर में फिर उसको इमेजिनेट कर एक चीज़ों को इमेजिन करता है, फिर उसको फिर प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। These elements combine to furnish the substance and the life of literature. ये elements combine होते हैं तो एक life
substance and the life of literature एक हमारे पास फिर बनती है जी. Fourth element in literature is the technical element or the element of composition and style. The fourth element में आप फिर एक technical element आ जाता है जिसमें आप composition और style को देखते हैं. Literature, according to Matthew Arnold's much discussed definition, is a criticism of life. अब Matthew Arnold की definition अगर देखे जाएं तो वो कहता है कि literature is a criticism of life. But this can mean only that it is an inception of life, as life shapes itself in the mind of interpreter. तब मैथ्यू आर्नल्ड तो कहते हैं कि इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ऑलराइट. Whereas the French epigram, अगर आप देखें, फ्रेंच एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो कहती है आर्ट इज लाइफ सीन थ्रू अ टेम्परामेंट. यानी आर्ट आप एक ऐसी लाइफ है जिसको आप टेम्परामेंट के थ्रू देखते हैं. Then for the mirror which the artist holds up to the crowd, up to the world about him, is of necessity the mirror of his own personality. फिर आर्ट यानी कैसी चीज है कि वो एक मिरर है फिर जो कि राइटर दिखाता है, जो वर्ल्ड को दिखाता है किस चीज का. ऑफ नेसेसिटी द मिरर ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी का एक मिरर है जो वर्ल्ड के सामने लेकर के आता है आर्टिस्ट. द ग्रेट बुक, a great book is born of the brain and heart of its author. यानी एक ग्रेट बुक की बात होती है कब प्रोड्यूस होगी कि वो जो जब आथर का ग्रेट ब्रेन है और आथर का ग्रेट ग्रेट हर्ट है उससे प्रोड्यूस होती है. फिर आथर के बारे में बात होती है कि वो इंडिविजुअल, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरकोर्स, ये चीजें मैटर करती हैं कि वो ग्रेट बुक तब प्रोड्यूस होती है. जितनी ग्रेट बुक है तो इसका मतलब उतना ग्रेट आथर भी है. वी वांट फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम नॉट स्कॉलर्स बट गुड रीडर्स. हाँ, तो ग्रेट आथर अगर आप बनना चाहते हैं, ग्रेट बुक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वी विल बी नॉट स्कॉलर्स डायरेक्टली बट वी विल हैव टू बी गुड रीडर्स. आप राइटर में बता रहे हैं गुड रीडर्स आपको बनना होगा. तो गुड रीडर बनेंगे तो यू विल गेट गुड माइंड, यू विल गेट गुड हर्ट. तो फिर then on the basis of that good mind and good heart you are going to be a great author and then you are going to produce a great book. हमें राइट ये बात समझाना चाहते हैं. जब हम गुड रीडर बन सकते हैं तो हम गुड ऑथर भी बन सकते हैं. Personal experiences, it has been rightly said, is the basis of all real literature. फिर अब कहा जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस ही एक्चुअली बेस है जितना भी तमाम रियल लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे. क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में अगर आप गुड रीडर्स हैं, अच्छे ऑब्जर्वर हैं, अच्छे इमेजिनेशन कर सकते हैं, और देन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ ग्रेट बुक. A great book owes its greatness in the first instance to the greatness of the personality which gave it life. सबसे पहले तो ग्रेट बुक जो है ना, it actually owes to the greatness of the personality which gave it life. यानी जितनी बड़ी पर्सनालिटी है, जितना बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस था राइटर का, उसी की वजह से एक बुक प्रोड्यूस हुई है. A good book, as Milton finally says, is the precious lifeblood of a master spirit, embalmed and tied up on purpose to a life beyond life. यानी मिल्टन बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि ये तो एक प्रेशियस लाइफ ब्लड है. यानी लाइफ ब्लड डज मीन कि ये इसको लाइफ देती है, which gives something life. ठीक है, दिस इज द प्रेशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट. यानी एक मास्टर स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ जो आथर है, ये उसके लिए जो गुड बुक है वो एक लाइफ ब्लड बन जाती है. फिर जो embalmed and tied up on purpose to a life beyond life, यानी फिर जबरदस्त पर्पस के लिए होती है. किस पर्पस के लिए कि लाइफ बियॉन्ड लाइफ को ये डील कर रही होती है. So here is the end of today's lecture. We will discuss the next part of this topic in the next lecture. अब इसको प्लीज खुद भी पढ़ लें. मैं आपसे ये फाइल शेयर भी कर दूंगा. अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछेगा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.